میں ایک عظیم خطیب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، لیکن 2-3 باتیں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کبھی بہار کی پہلی بارش کی خوشبو محسوس کی ہے؟ شاید ایسا تجربہ نہ ہو۔ کشمیر کی بارش ہر لفظ کی خوشبو مہکے اور دل جاگے۔ آپ نے کبھی تہ در تہ بادلوں کے 20 پردوں میں بدلیاں چمکتی دیکھی ہے جی، جس میں اندھیری رات کی بارش کے قطروں قطرے منور ہیں؟ اور کیا آپ نے کبھی میری کشمیر کی آبشاروں کا تسلسل دیکھا ہے کہ جن میں خوشبو ہوتی ہے، مہک ہوتی ہے، اپنے ماحول کو روشن کرتی ہے؟ میں ایک ایسے خطیب کو دعوت خطاب دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، لیکن ایک نعرہ تکبیر! اتنے نعرے پہ کوئی اتنا بڑا خطیب نہیں میں بنا سکتا۔ نعرہ لگا کر خطیب بناؤں ہے جی، نعرہ تکبیر! علماء حق! میں نعرہ تکبیر! رسالت! آیان سنت علماء دیوبند! ناظر اسلام علامہ خالد محمود! شان صحابہ! شان صحابہ! آپ کو علماء دیوبند کے ایک بڑے خطیب ابوالکلام آزاد کی ایک جھلک دکھانے کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا علامہ یحییٰ عباسی صاحب۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں، علم میں، ہر کام میں برکت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنہ محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجیل والتوراۃ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے گھر دیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام اور حضرات طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 17 جون سن 2012 کو 12ویں سالانہ عظمت صحابہ کانفرنس اپنی شان و شوکت سے انعقاد پذیر ہے۔ مخدوم العلماء، ہر دل عزیز شخصیت
हज़रत मौलाना कारी तसव्वुरुल हक मदनी साहब की सीरत कॉन्फ्रेंस के हवाला से जो काफ़िला हक उलमाए हक उलमाए देवबंद की नुमाइंदगी के लिए इंडिया और पाकिस्तान से यहाँ आता है, तो उनकी मेहनत और जद्दोजहद और काविश की बरकत पूरे यूके में अल्लाह की तौहीद, हुजूर की सीरत और सहाबा की अज़मत के डंके बजते। सुभान अल्लाह। दुआ है कि रब्बुल आलमीन हज़रत कारी साहब के इल्म और अमल में इस उम्र में बेबहा बरकतें अता फरमाएं। और मैं कोई तकरीर तो नहीं कर सकूँगा क्योंकि स्टेज पर इल्म और अमल के बहरे बेकराम उस्ताद उलमा आलिम बाअमल हर दिल असीस शख्सियत मुफक्किर इस्लाम में जिनके लिए 10 मिनट अलकाब अगर कहता रहूँ तो कम है, हज़रत मौलाना अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब मद्दज़िलुल आली, अल्लाह उनकी सेहत, इल्म, अमल, उम्र में बेबहा बरकतें और उनका साया तादेर हमारे सरों पे सलामत रखे। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और ऐसे लोगों की ज़ियारत ही सवाब है, चे जाए कि कुछ उनके समंदर से हमें मोती मिल जाए। सुभान अल्लाह। तो मैं खुद भी चाहूँगा कि मैं अपना वक़्त भी उन्हीं की नज़र करूँ और उनसे हम कुछ सुने, कुछ सीखें, कुछ समझें और अपने इल्म अमल को जिला बख्शें, रौनक बख्शें। लेकिन हज़रत कुरैशी साहब के लंबे चौड़े तारुफ और उनका हुस्न ज़न ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं 2-3 मिनट कोई ना कोई बात ज़रूर कर जाऊं। नहीं तो मैंने जहन में ये सोचा हुआ था कि जब मेरा ऐलान होगा तो मैं अपना वक़्त हज़रत की खिदमत में पेश करके बात इजाज़त चाहूँगा। सिर्फ 2-3 मिनट आपके लेना चाहूँगा। मैंने जो सीरत कॉन्फ्रेंस में उन्वान छेड़ा था और दरमियान में छोड़ा था, आपको अक्सर को याद होगा, और मैंने कहा था कि मैं अब सिद्दीक की झोली से बात को गुंबद खिजरा की लोरियों तक पहुंचाऊंगा। चूंकि ये अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस है और हज़रत नुमानी साहब इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस दौर में जब इस उन्वान और टॉपिक की बड़ी अशद ज़रूरत है और इस मरकज़ को भी कामयाबी से हम किनार करने पर हम उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके इस चर्च को ऐसी जामे मस्जिद और ख़त्म नबूवत एजुकेशन सेंटर बना दिया कि वाकई पता चलता है कि यहाँ ख़त्म नबूवत के भी चर्चे हैं और ख़त्म नबूवत के पहरेदारों यानी साहबे कराम की इज़्ज़त और अज़मत के भी चर्चे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये यहाँ होते रहेंगे। तो मैंने सीरत कॉन्फ्रेंस में बात शुरू की थी। कारी तसव्वुरुल हक साहब ने मुझे हुक्म फरमाया था कि मैं हिजरत मुस्तफ़ा पे कुछ अर्ज़ करूं, तो मैं हिजरत मुस्तफ़ा के उस सफ़र को सिर्फ 3 मिनट में बड़े मुख्तसर वक़्त में बायर मुकम्मल करना चाहूँगा ताकि मैं ज़्यादा देर हायल न रह सकूँ कि मैंने उस सफ़र को आपके सामने उसका नक्शा खींचा था और हुजूर को और सिद्दीक़ अकबर जब गारे सौर के दहाने पर पहुंचे तो सिद्दीक़ अकबर ने अल्लाह के पैगंबर को कंधों से उतार कर ये नहीं कहा आका मैं लंबी पहाड़ी थी 3 मील की चढ़ाई थी और कंधों पे नबूवत का बोझ था, आका थक गया हूँ, इजाजत हो तो 2 मिनट आराम कर लूँ, सांस ले लूँ, पानी पी लूँ, रेस्ट कर लूँ, कमर सीधी कर लूँ। बल्कि ऐसा कोई जुमला नहीं कहा। मैं सिद्दीक़ की अदा, वफा, हया और उनकी अज़मत पे कुर्बान जाऊं। सिद्दीक़ अकबर ने उल्टा ये कहा आका आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाके बिस्तर बनाता हूँ, आप आके आराम कर लें। तो पैगंबर ने पूछा अबू बकर हम बिस्तर लेके तो नहीं आए थे, बिस्तर कहाँ से आएगा? तो सिद्दीक़ ने फिर मुस्कुरा के कहा आका अगर सवारी नहीं थी तो क्या हुआ? अबू बकर के कंधे मोहम्मद की सवारी बन गए थे। अगर बिस्तर नहीं है तो क्या हुआ? आज अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर बन गई। और फिर सिद्दीक़ अंदर गए, गार की सफाई की, अपनी पगड़ी को उतारा और नबूवत के लिए अपनी पगड़ी को झाड़ू बनाया, सफाई की, गंद बाहर फेंका और सुराखों पे अपने वजूद के कपड़ों के टुकड़े करके बंद किए। एक सुराख बचा तो एड़ी रखी और फिर पैगंबर को बुलाया और बुलाकर अपनी झोली में सुलाया। तवज्जो करो, मैं बड़ी तेजी के साथ आगे एंड पे जाना चाहता हूँ। पैगंबर को बुलाया और बुला के अपनी सदाकत वाली झोली में सुलाया और यहाँ पे आके बुखारी ने एक बहुत बड़ा जुमला कहा था कि जब सिद्दीक़ की झोली थी और पैगंबर का सरे अक़दस था तो मंजर ऐसे था जैसे रहल में कुरान होता है। तो उस पैगंबर के उस मंजर में जब सदाकत की झोली में नबूवत का सर मुबारक आया तो हज़रत सहाबा के दीवानों मतवालों, हुबदारों, वफादारों और पैगंबर के यारों को मानने वालों, तुमसे एक सवाल करता हूँ कि जब झोली सदाकत की थी और सर नबूवत का था, बड़ी तवज्जो से जवाब देना, जब झोली
सदाकत की थी और सर नबुव्वत का था। ईमान से बताओ दरमियान में कोई फैसला था? सारे बोलो कोई फैसला था? बल्कि नहीं, डायरेक्ट झोली सदाकत की, सर नबुव्वत का कोई फैसला नहीं, बिला फसल। जब पैगंबर और सिद्दीक बिला फसल जमा हुए तो काले को तकलीफ हो गई, काला तड़पने फड़कने लग गया कि क़यामत तक झगड़ा तो इसी बिला फसल पे लेना है। और सिद्दीक नबी के साथ बिला फसल क्यों हो गया? तो काला भागा और सदाकत की एड़ी पर डसने लगा और वो डसकर ये तसव्वुर करने लगा कि शायद मैं सदाकत को नबुव्वत से जुदा करके दरमियान में फासला बर्पा कर दूंगा। लेकिन आगे भी सिद्दीक था कि इकबाल की ज़बान में कहता हूँ, जिसने कहा होगा कि सो मेरे गनीम न भूल तू कि सितम की शब तो सवाल है, तेरा जुल्म जब बड़ा सही मेरा हौसला भी कमाल है। जब वो काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। कुछ जाहिल कहते, तबर्राबाज मलंग धुएंदार कहता है कि अबू बकर रोया था। मैं क्या करता तू? अबू बकर न रोया था, न रोने वाला था, न रोने आया था। आखिरी जुमला कह के बात खत्म कर रहा हूं। अबू बकर न रोने वाला था, न रोया था, न रोने आया था। अबू बकर तो रुलाने आया था। आले दिन को मेरी बात टच करेगी कि अबू बकर न रोया था, न रोने वाला था, न रोने आया था। अबू बकर तो रुलाने आया था। उस मलंग को अबू बकर ने ऐसा रुलाया कि उस दिन से लेके आज तक रो रहा है कि अबू बकर बिला फसल क्यों हो गया। तो वो डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। और फिर सिद्दीक अकबर ने अपना पाँव हटाया। सारे बोलो हटाया। चलो हटाना बड़ा जुमला है, इससे भी अगला जुमला कहता हूँ। अबू बकर ने पाँव हिलाया। अबू बकर, मैं तेरी वफा और अदा पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं कि पाँव हटाना तो दूर की बात, अबू बकर ने पाँव हिलाया ही नहीं। क्यों? कि अबू बकर तो तहिया कर चुका था, जान जाती है तो जाए लेकिन मोहम्मद का आराम न जाए। और फिर हुजूर जागे, पूछा अबू बकर क्या हुआ? सिद्दीक ने फिर कहा अल्लाह के नबी कुछ नहीं, वो काले को जरा तकलीफ हो गई थी तो वो दिल का काला, शक्ल का काला, अकल का काला, अकीदे का काला, कपड़ों का काला, दिमाग का काला, जबान का काला, यहाँ भी काला वहाँ भी काला। उसको जरा तकलीफ हो गई थी कि सिद्दीक नबी के साथ बिला फसल क्यों हो गया। तो उसने आकर मुझे डसना शुरू कर दिया। परमिंदा वालों, आखिरी जुमला दे के बात खत्म करने लगा हूँ कि उसने मुझे डसना शुरू कर दिया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर फिर तूने क्या किया? अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी मैं तो डटा रहा, वो भाग गया, मैं नहीं भागा, वो छोड़ गया, मैंने नहीं छोड़ा, वो रो गया, मैं नहीं रोया, वो मुझे डस के थक गया, मैं सह के नहीं थका। तो हुजूर ने फरमाया होगा अबू बकर एड़ी इधर ला, हम हैं तो क्या गम है। अबू बकर एड़ी इधर ला। अबू बकर ने एड़ी आगे की। हुजूर ने अबू बकर अपना लुआ पे दहन लगाया और पूछा अबू बकर अब क्या हाल है? सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी लगता है काले की मेहनत बर्बाद हो गई। अब तो ऐसा लगता है जैसे काले ने जैसा ही। हाँ तो अब तवज्जो करना, टेढ़ी पे जब लुआबे दहन लगा, एक मौका था जब शेर खुदा की आंखों पे लुआबे दहन लगा। अब तसव्वुरात की दुनिया में फैसला खुद ही करते जाओ कि आंखें इंसान की इंतहा है और टेढ़ी इंसान की इब्तदा है। जो मकाम शेर खुदा की इंतहा को मिला वो मकाम अबू बकर के कदमों की इब्तदा को मिला। यही वजह है कि खिलाफत भी अली को इंतहा में मिली, अबू बकर को इब्तदा में मिली। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।